Yeah, took it. سو فائنلی جی ہم پہنچ چکے ہیں بلٹک فورٹ. ابھی بھی تھوڑا سا اوپر ہی ہے لیکن ایٹ لیسٹ نظر آنا اسٹارٹ ہو گیا ہے. الطف فورٹ لوکلز کے مطابق 1000 سال پرانا فورٹ ہے جبکہ یہ بالطف فورٹ جو ہے یہ 800 سال پرانا فورٹ ہے. سائز اور ہسٹری کے لحاظ سے دیکھیں تو الطف فورٹ کی نسبت اس بالطف فورٹ کی ہسٹری بھی زیادہ اور سائز بھی زیادہ ہے لیکن اولڈ فورٹ جو ہے وہ الطف فورٹ ہے. یہ بالطف فورٹ ایک ہی حکمران کے دور میں اتنا بڑا فورٹ نہیں بنا ہے. اس فورٹ کے ہر ایک روم کو ہم 800 سال پرانا نہیں کہہ سکتے کیونکہ 30 سے زیادہ جنریشن گزرے, 30 سے زیادہ حکمران گزرے. انہوں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس فورٹ میں الگ الگ رومز تعمیر کیے. اس فورٹ میں جو بڑے چینجز آئے تھے وہ 1911 کے بعد آئے تھے جب یہاں کا میر جو تھے میر محمد عظیم خان 1911 کو دلی دربار چلے گئے تھے. تب اس وہاں سے اس فورٹ کے لیے کلرفل شیشے, اس فورٹ کے جو تھن منزل جو بنا تھے 1911 کے بعد بنا تھا. پھر اس فورٹ میں انگریزوں کے دور میں بھی یہاں پر کچھ ایڈیشن ہوئے تھے. دسمبر 1891 میں برٹش نے اس فورٹ کو پر حملہ کیا تو یہاں کا میر جو تھے میر صفدر خان یہاں سے چائنا کی طرف فرار ہوئے تھے. چائنا کا اشکر موسیٰ اپنا نیشنلٹی لی تھی, صوبہ سنگھ کی آئی. برٹش آئے تھے اس فورٹ میں, لوگ پہلے تک اس فورٹ میں نہیں آئے تھے. انگریزوں کو ان پہاڑوں میں کچھ ملنے والا چیز نہیں تھا, وہ بیک سائڈ سے رشینز کو روکنے کے لیے آئے تھے. رشینز جب اس قلعے پہ آتے وہ تقریباً سب کانٹیننٹ تک بھی آ سکتے تھے. اس لیے انگریزوں نے جو دسمبر 1891 میں اس فورٹ کو پر حملہ کر کے بیک سائڈ سے رشینز کو روکا تھا. پھر برٹش کے دور میں اس فورٹ میں سمر بلکونی, سمر سربم وغیرہ پھر برٹش کے دور میں اس فورٹ پہ بنے تھے. یہ بالطف فورٹ 45 سال تک خالی رہا تھا, بند رہا تھا. 1945 تک یہاں کے رویل فیملی کی ریزیڈنس تھی.
پھر بعد میں یہ لوگ یہ فورٹ چھوڑ کر اپنا ماڈرن نیو پیلس بنا کے شفٹ ہوئے تھے جو کہ کریم آباد میں دربار ہوٹل کے بیک سائڈ کا نیو پیلس ہے. اب جو ہمارا کرنٹ پیر ہے میر خزم فارغ خان جو کہ پرائم گورنر بھی اس بالتیس فورٹ کا اور ایکس گورنر بھی رواز پاکستان کا حیات نیچے نیو پیلس میں رہتے. تب یہ فورٹ 1945 کے بعد 45 سال تک بند رہا تھا 1990 تک. اس فورٹ کی صحیح دیکھ بھال نہ ہونے کی صورت میں اس کی اندرونی حالت خراب ہو جاتی تھی. ان کی دیواروں میں کریکس پڑ چکے تھے اور اس فورٹ کے گرنے کا زیادہ چانسز تھے. تب پرنس کریم آغا خان نے اس فورٹ کو اوپر 6 کروڑ روپے لگا کے اس فورٹ کو رینویٹ کیا کیونکہ جو ہمارے ینگ جنریشن ہے ان کو اپنا پاسٹ کا پتہ چلے ماضی کا پتہ چلے. پرنس کریم آغا خان نے اس بالتیس فورٹ کو رینویٹ کیا, آتیس فورٹ کو رینویٹ کیا, اسکیڈو سائڈ میں جو فورٹ سے شیگر اور خفلو فورٹ کو رینویٹ کیا. اس بالتیس فورٹ کا رینویشن کا جو کام تھا وہ 1990 میں سٹارٹ ہو گیا اینڈ 6 ایئرز میں کمپلیٹ ہو گیا. 29 سپٹمبر 1996 میں اس فورٹ کی اوپننگ کی. اس فورٹ کی اوپننگ میں اوور آل دی ورلڈ 26 ایمبیسڈرز آئے تھے اور ان کے ساتھ جو ہمارے پاکستان کے ایکس پریزیڈنٹ جو تھے فاروق احمد خان لغاری بھی آئے تھے اس فورٹ کی اوپننگ کرنے میں. اب آپ سے جو ہم ٹکٹ کی شکل میں فی لیتے آپ کی ڈونیشن اس فورٹ کے لیے. فردر اس فورٹ کو زندہ رکھنے میں ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں. اس فورٹ کو کوئی گورنمنٹ نہیں چلا رہا, یہاں کے پرائیویٹ عوام نہیں چلاتے. ہم آپ کے پیسوں سے اس فورٹ کو رینویٹ کرتے ہیں. سو اس فورٹ میں آنے کا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. باہر سے جو مہمان آتے ہیں ہم یہاں پہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پہاڑی علاقوں میں 800 سال پہلے لوگ کس طرح سروائیول کر رہے تھے, ان کے رہن سہن کس طرح تھی, ان کے کھانے پینے کا برتن دکھاتا ہوں یہاں پہ. یہ اس ٹائم کی اس فورٹ کی ریسیپشن روم تھی, لوبی تھی. اس فورٹ کی سامنے سے پروپر انٹرنس ہوتی اور بیک سائڈ سے ویو تھی. پھر اسی جگہ میں لوگوں سے ٹیکسز بھی وصول کرتے. یہ ٹیکس کلیکٹنگ ایریا بھی تھا اس ٹائم کا. ٹیکس کی بات کریں تو اس ٹائم کرنسی نہیں ہوتی, بورٹر ٹریڈ بورٹر سسٹم کہتے ہیں, اس کی مال کے بدلے میں مال. جس کے گھر میں 5 من گندم مانتا ہوں یہاں پہ 5 کلو ٹیکس پڑتا ہے میرا کے لیے سال کے آخر میں سال کے. اسی طرح آپ کے قدموں کے نیچی سائڈ پہ 3 الگ الگ سٹوریجز رکھے, غلے کی گودام بنائے گئے, اور اس سائڈ پہ بھی 3 الگ الگ غلے کی گودام بنائے گئے. سارے ملا کے یہاں پہ نیچے 7 سٹوریجز ہے جہاں پہ جو گندم کو سٹور کر کے رکھتے تھے. ان گودام کا نیچے سے دروازہ نہیں رکھتے تھے, نیچے کوئی دروازہ نہیں, وہ اس لیے رکھتے کیونکہ باہر سے کہ حملہ کرے تو آسانی سے گندم نہ نکال سکے. یہ مین ایکسس تھا, یہاں سے ٹیکسز ڈالتے بھی تھے اور نکالتے بھی تھے. یہ اس ٹائم کے غلے کی گودام ہے جہاں پہ لوگ گندم بنانے کی شکل میں ٹیکسز کرتے تھے. دشمن حملہ نہ کر سکتا تھا. اس لوگ اس فورٹ کے فرنٹ سائڈ پہ گارڈ رومز تعمیر کرتے, سیکورٹی رومز بناتے. اسی طرح یہ روم بھی اس ٹائم کا گارڈ روم تھا. ان ہال میں سنتری بیٹھتے تھے اور فورٹ کا نگرانی کرتے تھے. دیوار میں دیکھیں, دیوار میں جو خالی جگہ جو رکھے یہاں پہ ایروز کو رکھتے اور اس سائڈ پہ بوز کو ہینگز کر کے رکھے, تیر اور کمان. روم جو تھا بیسیکلی گارڈ روم تھا اس ٹائم. میپس بن گیا. اس سائڈ ہم نے کچھ اور ڈیزائن کے ڈریسز رکھے. یہ جو فرسٹ ڈریسز ہے یہ چائنیز کی طرف سے گفٹ تھے میرا افندہ کے لیے, کیونکہ ہمارا قریبی جو ہے چائنیز کا بارڈر ٹچ ہوتا ہے. اس ٹائم کے لوگ تجارت ٹریڈ وغیرہ چائنیز کے ساتھ زیادہ کرتے تھے. یہ بنارسی کا پڑا یہاں پہ میرا افندہ شادی میں پہن کے جاتی ہے وہ ڈریسز. سینٹر میں فیمیل ڈریسز ہے. ان کو کھلے اس لیے بناتے کیونکہ اس ٹائم اونزا میں سجے زیادہ ہوتی, ٹیمپریچر -20 -30 تک بھی چلے جاتی تھی. اس سے وہ لوگ اپنے ڈریسز جو ہے کمبل کے طور پہ بھی استعمال کرتے تھے اور اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی باندھ کر کے رکھتے تھے کیونکہ ان کو بھی گرمی لگی, اس سے وہ لوگ کھلے ڈریسز رکھتے تھے. اور نیچے جو بوٹ بناتے مارخور کے چمڑے سے بناتے جو کہ ہمارا پاکستان کا نیشنل اینیمل ہے. این میں جو ڈریسز ہے ان کے اوپر جو ڈیزائن ہے کشمیر ڈیزائن کے ڈریسز ہے جو کہ کشمیر کی طرف سے گفٹ تھی میرا افندہ کے لیے. اس 15th سینچری کا میپ ہے, فرینچ لینگویج میں لکھا ہے. بہت آر ورلڈ میں فرسٹ ون 13th سینچری اینڈ سینٹر ون 15th سینچری. آخر میں جو انٹرنس میں میپ ہے اس کو ہم دی گریٹ گیم آف میپ بھی کہتے ہیں کیونکہ انڈینس کا بنایا ہوا میپ ہے. انہوں نے سینٹر میں لائن شو کیا, اس لائن سے نیچے علاقہ جو تھا اس ٹائم برٹش انڈر ہوئے تھے اور اوپر علاقہ جو تھا اس میں رشینز انڈر ہوئے تھے. اس لائن سے نیچے علاقہ جو اس میں اونزا بھی شامل ہے
इस हुंजा के ऊपर उस टाइम ब्रिटिश भी आने वाले थे और रशियंस भी आने वाले थे, इसलिए अंग्रेजों ने जो दिसंबर 1891 में इस फोर्ट के ऊपर हमला करके बैक साइड से रशियंस को रोका था। फिर उसने इस मैप का नाम दिया था द ग्रेट गेम ऑफ मैप। नेक्स्ट रूम वखान कॉरिडोर पट्टी सा है, सेंटर में बुर्शस की बोलते हैं। अब जब आगे अपर है जो है गिलगित साइड चले जाएंगे वहाँ पे भी तो इनमें डिफरेंस ज्यादा है। और बुर्शस के ऊपर अभी भी रिसर्च हो रहा कि ये जबान कहाँ से आया, ठीक है। एक दो लोग कहते हैं कि ये इसमें जो है चाइनीज भी मिक्स है, फारसी भी मिक्स है, ठीक है। और इसके ऊपर अभी रिसर्च हो रहा है कि ये लैंग्वेज कहाँ से है, इसके किसी दूसरे कोई फैमिली के साथ टच नहीं होता, कोई पश्तो के साथ टच नहीं होता। मीरा फुंदा के खास मेहमान इस रूम में आते हैं और वो लोग अहम मौजू पर यहाँ पे मीटिंग करते हैं। इस रूम को विंटर रूम भी इस्तेमाल करते और समर रूम भी इस्तेमाल करते हैं। विंटर के सीजन में सेंटर में आग जला देते हैं, एक साइड पे मेल बैठते, एक साइड पे फीमेल बैठते और एक साइड पे अपने बच्चों को रखते हैं। आज भी उनका कि किसी 90% किसी घर में चले जाए, वहाँ पे हम आज भी इसी तरह से अपना घर बनाते हैं। जब विंटर सीजन आता है उस टाइम के लोग इन दरवाजों को बंद करके रखते हैं। जब सेंटर में आग जलाते हीटिंग के लिए इस रूम में 24 घंटे तक गर्मी रहती है, क्योंकि इस रूम के जो दीवारें बनाते वो लोग मोटे भी बनाते और छोटे भी बनाते। मोटा बनाने का मकसद इस रहता कि दीवारें जो इंसुलेशन तौर पर इस्तेमाल होते अंदर से जो गर्मी बाहर नहीं निकलती। जब समर सीजन आता उस टाइम के लोग इन दरवाजों को खोल कर रखे थे और छत के सेंटर में हो रखे थे वेंटिलेशन स्मोक वगैरह निकालने के लिए, रोशनी के लिए भी इसको भी खोल कर रखे थे। क्रॉस वेंटिलेशन के जरिए से अंदर सर्दी होती है, आप महसूस करेंगे बाहर थोड़ा गर्मी था, इस रूम में सर्दी है। अब जितना भी बाहर टेम्परेचर बढ़ेगा इस रूम में सर्दी होगा। अब जब विंटर सीजन आएगा बाहर जितना भी सर्दी होगा इस रूम में गर्मी होगा। वो लोग इस तरह विंटर्स और समर रूम्स बनाते हैं। इस फोर्ट का हर एक रूम के साथ छोटा स्टोर बनाते हैं, जो कि साइड पे भी एक स्टोर बनाए और उस साइड पे भी एक स्टोर बनाए, क्योंकि जो जरूरत की चीजें होती है वो लोग विंटर सीजन के लिए यहाँ पर स्टोर करके रखते थे। इवन स्पाइसेस को भी वो लोग ड्राई करके रखते हैं विंटर सीजन के लिए, क्योंकि हुंजा में जो 6 मंथ विंटर की सीजन होते हैं। आपके बैक साइड में 2 बॉक्सेस में पीतल के बर्तन नजर आएंगे। ये पीतल के बर्तन 1911 के बाद दिल्ली साइड से लाए गए। जब यहाँ का अमीर जो थे मीर नजीम खान 1911 को दिल्ली दरबार चले गए थे, तब उस नवाज अपने जरूरत के मुताबिक ये पीतल के बर्तन इस फोर्ट में लाए थे। और ये 150 साल पुराना कालीन, ये सेंट्रल एशिया का कालीन। उस टाइम उज्बेकिस्तान समरकंद बुखारा के जो कालीन होते वो ओवरऑल दीवार मशहूर थे। थ्रू अ खान बॉर्डर इस कालीन को इस फोर्ट में लाया था यहाँ पर रखने के लिए। और आपके नीचे जो बिछा का हमने कालीन रखे व्हाइट और ब्लैक कलर के मिक्सिंग में, ये उस जमाने के लोग भी बनाते और या भी बनते लोग का था, पर सेम मेथड आज भी इस्तेमाल होते हैं इनको बनाने के लिए। उस जमाने में देखे तो हुंजा में कॉटन नहीं होता, वो लोग अपने कालीन वगैरह याक के बाल और बकरियों के बाल से बनाती, मिक्सिंग में बनाती। वन ड्रेसेस भी वो लोग किस तरह बनाते हैं और सेम मेथड आज भी इस्तेमाल होता है लोग का सतह पर, आज बनाते लोग यहाँ पे घरों में। ये याक के बाल और बकरियों के बाल से बनाते, मिक्सिंग में बनाते। पंकज जैसा बॉक्स नजर आएगा, दिस इज ट्रेजर बॉक्स। जब दिसंबर 1891 में ब्रिटिश ने इस फोर्ट के ऊपर हमला किया, यहाँ के लोगों ने गोल्ड वगैरह यहाँ पे छुपाया, तो उस टाइम की ट्रेजर बॉक्स थी, ट्रेजर पिक थी। अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अंदर आगे रॉयल किचन की तरफ, रॉयल किचन की। पत्थर, लोहा और लकड़ी। पत्थर के जो सामान थे वो लोग पहले जमाने से इस्तेमाल करते कुकिंग के लिए, क्योंकि स्टोर में जो है हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। और ये मेटल के बर्तन 1911 के बाद दिल्ली साइड से लाए थे वो बर्तन। इस साइड पे देखिए पत्थर को तराश के बनाए, इसमें तेल निकालते, अखरोट बादाम का तेल निकालने के लिए इस्तेमाल करते थे। सेंटर में जो रखा वो लोग मोटे चीजों को पीस के छोटा बनाने के लिए। थर्ड में गोल सा तवा है जिसके ऊपर वो लोग रोटी पकाते हैं, कि तवे के ऊपर 3 या 4 रोटी एक साथ ही पकाते, ये पत्थर के बनाते हैं। सूप पे चम्मच या सूप पीने के लकड़ी के बनाते हैं। छत के सेंटर में और रखे थे रोशनी के लिए, और रात को वो लोग दिए जलाते रोशनी के लिए, जो कि स्पून के ऊपर भी एक दिया रखा है, नीचे स्टैंड पे भी एक दिया रखा है। ये पंपकिन से पेटा कद्दू है, इनकी नेचुरल इस तरह शेप पाए जाते हैं, इनकी कवर हार्ड होती है। इनमें लिक्विड जैसी चीजें स्टोर करके रखे थे, पानी लस्सी वगैरह। उनके साथ ही देखिए गोल से जो चीज खड़ा करके रखे, इसमें लस्सी निकालते हैं। सेंटर में वुडन पाइप रखे थे, उसको हैंड के जरिए से रोटेट भी करते और अप एंड डाउन भी करते हैं। इस तरह वो लोग लस्सी निकालते, ये लस्सी निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दीवार के साथ देखिए व्हाइट कलर का चमड़ा नजर आएगा, दिस अ फायर वेलो। उस टाइम की फुन्नी थी, लोहार से इस्तेमाल करते आग को तेज करने के लिए, आग को भड़काने की, उस टाइम की फायर वेलो थी।
ये वुडन बॉक्स से आटा वगैरह स्टोर करके रखने के लिए, और ऊपर खुला बर्तन इसलिए रखे क्योंकि उस टाइम एक ही फैमिली एक ही बर्तन में खाना खाते हैं, 9-10 लोग इकट्ठे बैठ के ही बर्तन में खाना खाते, से वो लोग खुला बर्तन रखते हैं। इस किचन का जो छत है ये 800 साल पुराना छत है। आप देखिए इसके नीचे ब्लैक कलर के तख्ते बने, लेयर्स बने, ये धुआं स्मोक की वजह से इस किचन के छत के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लैक हो गई, 800 साल पुराना छत है। इस किचन में सबसे इंटरेस्टिंग वहाँ फर्स्ट वुडन बॉक्स लकड़ी का, इज अ माउस ट्रैप। इस किचन में जो चूहे होते थे वो लोग इस डब्बे में पाकिस्तान की चूहेदानी थी, माउस ट्रैप पर थी। आपके सामने देखिए छोटा सा स्टोर है, ये उस टाइम की फ्रिज थी क्योंकि बैक साइड में उत्तर ग्लेशियर था, वहाँ से ठंडा हवा था, इससे लोग खराब होने वाली चीज़ वहाँ पे स्टोर करके रखते, दूध लस्सी वगैरह। रिसेप्शन जाएंगे, रिसेप्शन से ये पहले बंद नहीं था, बाद नहीं मतलब वो डाइनिंग हॉल में जाते थे, दरवाजे थे इनके अलग अलग, ठीक है। अच्छा, इधर से लेके वो डाइनिंग हॉल जाते थे, बिल्कुल अलग अलग जगह पे मेरा हुंजा बेड तो नीचे की आका ब्रेन बेड। नॉर्दर्न एरियाज के पहाड़ों में 3 किस्म के जानवर पाए जाते हैं। फर्स्ट वन आइबेक्स, सेंटर वन मार्खोर एंड थर्ड वन भी आइबेक्स के। आइबेक्स और मार्खोर जो है सेम पहाड़ी बकरेन में सीज में फर्क है। ये नॉर्दर्न एरियाज के पहाड़ों में 5000 बुलंदी पे होते हैं। इन दोनों से अलग मार्को पोलो शिप, उस टेस्ट में मैं अंदर बताऊंगा, मैं नेक्स्ट रूम में लगा है। पोलो स्टिक से पोलो गेम पहले ज़माने में में ज़्यादा खेलते थे। बेसिकली गेम जो पर्शियन गेम था, ईरान से स्टार्ट हुआ था, देन अफगानिस्तान, देन ये गेम यहाँ पर स्टार्ट हुआ था हुंजा में। और यहाँ से कुछ रिलेशन नज़र आते जो कि कराकुरम रेंज में आते हैं। फर्स्ट में है राकापोशी, सेंटर में है दीरान की, और नीचे रेंज में देखिए सुमैया की, ठीक है। इस पहाड़ के पीछे देखिए स्लोप सा नज़र आएगा, वो गया दीरान की, और नीचे रेंज में है सुमैया की। उस साइड पे देखिए होपर रेंज में इस पहाड़ के पीछे गोल्डन पीक इसलिए कहते हैं क्योंकि जब सनसेट होता है सन के रेजेस बर्फ के ऊपर पड़ते हैं, वो गोल्ड की तरह दिखता है, उसको गोल्डन पीक कहते हैं। बैक साइड में उत्तर टू, और इस पहाड़ के पीछे उत्तर वन के साथ लेडी फिंगर जो कि यहाँ से नजर नहीं आता। जब विकेट चले जाएंगे अगेंस्ट है, वहाँ से आपको ये रकापोशी भी नजर आएगी और ये सारे ग्लेशियर्स नजर आएंगे। प्रिंस करीम आगा खान का इन हुक्मरानों और इस किले के साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस किले को जिंदा रखने में इसका ज्यादा डोनेशन इस नाम ने इनके पिक्चर यहाँ पर लगा है। और एक साइड पर उन हुक्मरानों की पिक्चर स्टार होती है जिन्होंने 1000 साल तक की जगह पर हुकूमत की, 30 से ज्यादा जनरेशन गुजरे, 30 से ज्यादा हुक्मरान गुजरे। मीर गजन खान का जो रूल था वो 30 से ख्याली पिक्चर बनाए क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी फोटोग्राफी के लिए, ख्याली पिक्चर। इनके 2 बेटे थे, मीर सफदर खान और मीर मोहम्मद अजीम खान। मीर सफदर खान का जो रूल था वो 1886 से दिसंबर 1891 तक रहा है। दिसंबर 1891 में ब्रिटिश ने जब इस फोर्ट के ऊपर हमला किया तो ये यहाँ से चाइना की तरफ फरार हुए थे। चाइना का आश्कर में अपना नेशनलिटी ली थी सुबह सिंह के आगे। इनका भाई मीर मोहम्मद अजीम खान सितंबर 1892 से 1938। एक साल बाद अंग्रेजों ने इनके भाई को दोबारा वेलकम किया तख्त को संभालने के लिए, और वो दोबारा इस फोर्ट में आ गए। फिर इसके दौर में इस फोर्ट में ज्यादा एडिशन हुए थे। नीचे मैंने मेटल का बर्तन दिखाया था, और अगर हम कलरफुल शीशे देखेंगे जो कि इसने दिल्ली दरबार से लाए थे 1911 के बाद। मीर नजीम खान का बेटा मीर गजन खान जो कि सब मेजर भी रहा गिरगिज स्काउट का, इनका दौर 1938 से 1945 तक रहा है। इनके दौर में ये लोग ये फोर्ट छोड़ का अपना मॉडर्न न्यू पैलेस बना के शिफ्ट हुए थे मीर गजन खान के दौर में। मीर गजन खान का बेटा मीर मोहम्मद जमाल खान 1945 से 1974। बिफोर 1947 ओवरऑल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रिंसेस स्टेट थे, अलग रियासतें थे, उनमें हुंजा भी शामिल था। हुंजा पहले अलग स्टेट था, अलग रियासत था। इसने जब 3 नवंबर 1947 को कायदे आज़म को लेटर लिखा था कि हुंजा जो है पाकिस्तान के साथ इल्हाक होना चाहता है, तब इनके दौर में हुंजा पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो गया था 3 नवंबर 1947 को। बिफोर 1947 वो लोग ये फ्लैग इस्तेमाल करते जब हुंजा अलग स्टेट था, अलग रियासत था। ये बोज एंड एरोज टी रोड कमान डिफेंस और बहादुरी का सिंबल शो करता है, और ऊपर चांद और स्टार जो कि हमारा पाकिस्तान के झंडे में भी मीन्स एज अ मुस्लिम शो करता है। अब जो हमारा करंट पीर मीर गजन फारिल खान जो कि प्राइम डोनर भी इस बाल्टिक फोर्ट का और एक्स गवर्नर भी है बल्तिस्तान का, हयात नीचे न्यू पैलेस में रहते हैं। इनकी वाइफ रानिया फंदरानी देखा और इनके बेटे प्रिंस हासिम खान, ये तीनों हयात नीचे न्यू पैलेस में रहते हैं। फिर इनके कुछ सेरेमनी ड्रेसेस आप देखिए, यहाँ पे मीर मोहम्मद जमाल खान ने भी पहना हुआ, इन्होंने गिफ्ट के डोनेट किए वो ड्रेसेस यहाँ पे रखने के, और एक कुछ डिफेंस के सामान है, तलवार वगैरह। और इस साइड पे देखिए हो गया मार्को पोलो शिप। नॉर्दर्न एरियाज के पहाड़ों में ये जानवर भी पाए जाते हैं। मार्को बेसिकली इटालियन नाम है। जब 13th सेंचुरी में इटालियन शख्स वखान बोरिसो हो तो अफगानिस्तान की तरफ जा रहा था, तब उसने इसका नाम मार्को पोलो शिप रखा था।
जिसको हम अपने ब्रिटिश की लैंग्वेज में रुश कहते हैं क्योंकि शीप की तरह होते हैं। सिंग्स 3 टाइम टर्न होता है, अब ये यंग इसका हाफ टर्न और थर्ड टर्न में वजन इतना बढ़ता है, इसका नेक जो गला वो टूट जाता है, इसका इतना वजन बढ़ता है इसके सिंग्स की वजह से। अब ये जो स्पीशीज मिलते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज तरफ जायज को कम मिलते हैं क्योंकि लोगों ने इनकी हंटिंग ज्यादा की है। इससे गवर्नमेंट जो है एक ही साल में एक ही बंदे को लाइसेंस देते इसकी हंटिंग के लिए, 1.5 करोड़ का लाइसेंस शो करते एक ही साल में एक ही बंदे को। 1 फायर बुलेट होता है, उसके मिस हो गए तो 1.5 करोड़ रुपए चले गए। वो लोग इस तरह भी इनकी हंटिंग करते हैं। हंटिंग करते ओल्ड की हंटिंग करते क्योंकि जो ओल्ड मर जाते उससे यंग्स के लिए भी खतरा होता है और ये खुद ब खुद भी मर जाते हैं। ये आगे अब जो है खुंजराब साइड में पाए जाते हैं। एक साइड चाइनीज और एक साइड फारसी है। ये चाइनीज के साथ ट्रेड एग्रीमेंट से तिजारती मुआहदे थे 1930 से 1931 का दौरान और ऊपर से डिजाइन, ये कश्मीरी डिजाइन के सिंगल्स है। ये कश्मीरी फर्नीचर दिसंबर 1891 में अंग्रेज अपने साथ लाए थे, वो फर्नीचर है। उससे पहले उनजम हम अपने घरों में बेडरूम में फर्नीचर इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज भी उनका कि किसी 90% से घर में चले जाए वहाँ पे हम आज भी जो है बेडरूम में फर्नीचर इस्तेमाल नहीं करते हैं। फर्श के ऊपर कुशन और मैट्रेसेस बिछा के बैठते हैं। ये फर्नीचर दिसंबर 1891 में अंग्रेज अपने साथ लाए थे, ये वो फर्नीचर है। और ये एक्सेशन लेटर है। जब 3 नवंबर 1942 को यहाँ का मीर मोहम्मद जमाल खान ने कागजाम को लेटर लिखा था कि हुंदा जो है पाकिस्तान के साथ इलाका खोलना चाहता है, उस लेटर की कॉपी है ये। यहाँ पे आके सारा वादी का नजारा ये बेलकोनी जो बना था ब्रिटिश के पीरियड में बना था 1915 से 1930 के पीरियड में ब्रिटिश ने इस बेलकोनी को बनाया था। ये 1930 की टेलीफोन है जो कि फर्स्ट टाइम ब्रिटिश ने सुंजा में ये टेलीफोन लाया था अपने लोगों के साथ रब्ता रखने के लिए। ये 1930 की टेलीफोन है। फर्स्ट में मीर मोहम्मद जमाल खान की पिक्चर है, उसके साथ जो छोटा बच्चा जो अब हमारा करंट पीर मीर गजनफर अली खान, ये हयात 90s को उम्र माफी में नीचे न्यू पैलेस में सेंटर में टिल्ला आलतित में लिया है। मीर मोहम्मद जमाल खान की पिक्चर, उसके साथ उसकी एहलिया उसकी वाइफ की पिक्चर है। लास्ट में उसकी साहिबजादी की पिक्चर है जिसने पेंट जैसे आखिर में भी पिक्चर बनाया। इसका जो शादी हुई थी वो सामने नगर वैली में हुई थी। 2006 में इसकी वफात हो चुकी है 98 की उम्र में। फर्स्ट में मीर मोहम्मद जमाल खान की पिक्चर है जो कि चाइनीज प्रेसिडेंट चुआ लाइन के साथ एक राकरूम हाईवे बनाने का एग्रीमेंट चला था, उस टाइम की पिक्चर है। 1960 की पिक्चर है। इस साइड में कुछ आजाद भाइयों की पिक्चर है। सेंटर में देखिए 1950 की पिक्चर है। बाहर में जो तख्त का साइड दिखाया था, लोग इस तरह दरबार लगाते मीरा पुंजर के साथ, तख्त पे मीरा पुंजर बैठते हो नीचे क्या काबरी में, ये तख्त की साइड की पिक्चर है। और इस साइड में कुछ आजाद भाइयों के पिक्चर्स है। एंड में देखिए दिल्ली दरबार की पिक्चर 1911, जब यहाँ का मीर 1911 को दिल्ली दरबार चले गए थे तब उस नमाज इस फोर्ट के लिए कलरफुल शीशे, ये कार्विंग डिजाइन, ये मुगल कार्विंग डिजाइन है। ये मुगल कार्विंग डिजाइन और बारे में जो स्लिम डिजाइन बताया था, इनके दौर में इस फोर्ट में 1911 के बाद एडिशन में लाई चीजें। मस्जिद कुरान पाक रखे, एक 200 साल पुराना और एक 300 साल पुराना, जो कि यहाँ के लोगों ने अपने हाथ से लिखे थे उस टाइम के पुराना मस्जिद कुरान पाक है। और ये बेबी कोट है बच्चों को सुलाने के लिए झूला, जो कि आज इस्तेमाल होता अपने घर में बच्चों को सुलाने की। और ये वुडन बॉक्सेस आपने देंगे जिसे गोल्ड कपड़े वगैरह रखने के लिए। और ऊपर खुला बर्तन इसलिए रखे क्योंकि उस टाइम एक ही बर्तन में खाना खाते, सॉरी खुला बर्तन में। इसकी छत के सेंटर में और रखे थे रोशनी के लिए, और रात को और दिए जलाते रोशनी के लिए, जो कि दीवार की साइड पे एक दिया रखा और उस साइड पे। ये छत का डिजाइन जो है सेंट्रल एशियन डिजाइन है। रशिया के नॉर्थ साइड में आज बनाते वो लोग 10 स्टेप पे बनाते, लेकिन ये 3 स्टेप पे बनाए। इस ऊपर छत को भी बनता है, बर्फ का पानी बारिश का पानी आसानी से निकलता है और नीचे रोशनी भी होता है। ये डिजाइन जो है सेंट्रल एशियन डिजाइन है। सेंट्रल पोर्शन ईटिंग के लिए होता है और वन साइड स्लीपिंग के लिए, पकाते भी यहाँ पे और सोते भी यहाँ पे। किचन प्लस बेडरूम भी था उनका। और ये छोटे छोटे स्टोरेज स्टोर वगैरह बना था हर एक रूम के साथ, जो कि साइड पे भी एक स्टोर बनाया और उस साइड पे भी एक स्टोर बनाया। विंटर के सीजन के लिए वो लोग अपने खुराक वगैरह यहाँ पे स्टोर करके। ये ऊपर उस टाइम भी खाली थी, वेंटिलेशन हवा के रूप के लिए वो खुला रखे थे। जब बारिश होती लकड़ी का तख्त बिछाते मीर अफुंजा के लिए बारिश से बचने के लिए। इस तख्त पे मीर अफुंजा बैठते और उस साइड पे उसकी वाइफ बैठती है। और ये 200 साल पुराना कारपेट है जिसको हम कुतन कारपेट कहते हैं। कुतन एक चाइना का जगह, उससे भी मशहूर कालीन बनती है, ये चाइना से लाए थे। और ये कुछ चाइनीज नोट, चाइनीज करेंसी है। 1920 में पूरी दुनिया में फर्स्ट टाइम चाइनीज ने पेपर इंट्रोड्यूस किया था
اور 3 سال تک یہاں پہ بھی چلے تھے 1920 سے 1920 تک ہنزا اور چائنیز کے درمیان. اور یہ ہمارے میوزیکل انسٹرومنٹس جو کہ آج بھی ہنزا میں ہم اپنے شادی بیاہ میں بجاتی ہے کچھ ہمارے میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں. اور یہ کلرفل چیز 1911 کے بعد دلی سائڈ سے لاتی ہے وہ کلرفل چیز ہے. اور یہ رشین گنز ہے, یہ 200 سال پرانے گنز ہے, ان کو پاؤڈرز گنز کہتے ہیں. سامنے سے بارود کاٹتے اور پیچھے سے آگ جلاتی ہے. ایک اردو کا محاورہ بھی ہے کاندھے پہ رکھ کے گولی چلانا. یہ وہ گنز تھے جو کہ 2 بندے چلاتے کہ کاندھے پہ رکھ کے پیچھے سے فائر کرتے. اور ہمارا ٹور یہیں تک تھا. سننے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. سو یہ تھا جی ہمارا بلتک فورٹ کا ٹور. اور اب ہماری جو نیکسٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ ہے ہنزا بازار. ادھر چھوٹا سا اسٹے لیں گے اور ادھر سے پھر ڈائریکٹ نکلیں گے جہلم کے لیے. اس ٹائم ہے جی ہم ہنزا فوڈ پویلین پہ. یہ بلتک فورٹ جب آپ جاتے ہیں تو یہ راستے میں آتا ہے. اور ادھر ان کی ایک فیمیل ہیں جو کوکنگ کرتی ہیں اس چھوٹے سے ڈھابے پہ. اور ادھر ہم ٹرائی کریں گے چاپ شورو. ہم نے آرڈر دیا چاپ شورو کا, تو اب جو ہے وہ ہمارا چاپ شورو تیار ہو رہا ہے. جیسے ہی آتا ہے تو اس کو کھا کے چیک کرتے ہیں کہ کیسا ہے. تو جی ہمارا جو ہے وہ چاپ شورو جو ہے وہ آ چکا ہے. اور اب اس کو کھاتے ہیں اور ٹرائی کرتے ہیں کہ کیسا ہے. ہمارا چاپ شورو آ چکا ہے جی, اس کو کھا کے چیک کرتے ہیں کہ کیسا ہے. ٹھیک ہے, تو آلو چکن کی فلنگ ہے اور پراٹھا ٹائپ کا ہے. بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے. ساتھ میں انہوں نے رائتا دیا. کیا بات ہے. آپ بتائیں جی کیسا لگا؟ بہت زبردست, ہائیلی ریکمینڈیڈ چاپ شورو.